Namaskaram, Yash here from Yog Prachar. Today we are going to do an interesting experiment, and that is something that you have to do with me. Okay, so now think of one sentence, but the twist is, the condition is that you should not utter a sound or a word where your lips are touching. So try to make one sentence, but the only condition is your lips should not touch while saying that sentence. Okay, let me give you example. So I'll say this sentence, my name is Yash. So that is a sentence. My name is Yash. But that's incorrect. The condition is not met. When I say my name, when I say so the lips are touching. So now let's again attempt. Utter one sentence where the lips are not touching. Think about it. I'm giving you 5-10 seconds. You can pause the video right now and think about. Now let me give you another sentence in Hindi. So you can do this either in Hindi or English, whichever is fine. So now another sentence I'll give you in Hindi and check if the lips are touching or not. So take this sentence. हिंदुस्तान एक गौरवशाली राष्ट्र है. हिंदुस्तान एक गौरवशाली राष्ट्र है. So if you take all the words in this sentence, you will see that lips are not touching. So this was an interesting, fun experiment, right? And can you see how much effort and mental energy is spent in figuring out those sentences? Now imagine that you have to speak for 1 hour, 60 minutes straight without using those words or sounds where the lips are touching. And to make your life easier, let me tell you which those words are or sounds are. P, P, B, B, and M. These are the sounds. If you utter this in any of your sentences, then your lips will touch. P, P. You can try this. P, P, B, B, and M. You can see the lips are touching. If you use any other sounds or words, lips won't touch. So basically, if you do this for 60 minutes, and in that 60 minutes, if you are not using this sounds or words or letters, then you will create a world record. And today I am here in Jamnagar, Gujarat, where a Jain monk is attempting this world record. So he will be speaking for 60 minutes straight and will be attempting a world record on this. He will be speaking on nation's glory and its spiritual past. And why this is important for us meditative and spiritual seekers, because this shows the power of mind and the power of consciousness. That when you speak with precision, with focus, and don't use unnecessary words. In our daily life, there is a lot of mental chatter. And because of that mental chatter, that translates into speech chatter. We speak a lot of unnecessary nonsense. So if you have to form your sentences without using these sounds, you have to be very precise, you have to be very conscious, and every word has to be weighed. And this creates enormous sense of focus and makes you very conscious about each and every word that you utter. So today I am here in Jamnagar, and with me is Shraman Chandra Sagar Ji Maharaj. He is a Jain monk, only 19 years old. तो उनके साथ हम बात करेंगे. कल वो हिंदी में 1 घंटे का प्रवचन देंगे, जिसमें वो कोई भी शब्द या ऐसी ध्वनि यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे होठ मिलते हो. तो हम उनसे 1-2 प्रश्न पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो महाराज जी नमस्कार. तो मुझे आप ये बताइए कि आपने 8 महीने से आप शब्द साधना कर रहे हो, तो उससे आपके जीवन पे, आपके साधना पे, आपके मन पे क्या आपने असर पाया, क्या चेंजेस पाए? ये पूरा प्रयोग शब्द साधना का प्रयोग, जब हम ध्यान करते हैं तब प्रारंभिक अवस्था में ध्यान भंग होने की पूर्ण शक्यता होती है. ऐसा ही एक्सपीरियंस मैंने भी किया. जब मैं शब्द साधना के पहले, उसकी पूर्व अवस्था में ध्यान करता था, तो हमने सुना था कि ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए. हम करते थे, लेकिन कोई आ जाए, कोई दरवाजे पे आ जाए, कोई आवाज़ आ जाए, कोई सॉन्ग बज जाए, कोई दरवाजा खटखटे, ऐसी कई सारी अलग अलग अवस्थाओं से हमारा ध्यान विकेंद्रित होता था, भंग हो जाता था. हमारी आंख खुल जाती थी, एकाग्रता टूट जाती थी. फिर हमने हमारे गुरुदेव को पूछा, ऐसा क्या करें जिससे ध्यान अखंडित रहे,
गुरुदेव ने बोला शब्द साधना पे अपने मन पे काबू रखो और मन को कमांड दो कि आप कुछ भी ध्यान कर सकते हो, अखंड ध्यान कर सकते हो। बस फिर गत 8 महीनों से सतत एक ही अनवरत माइंड को एक ही कमांड दिया कि तुझे श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है, तू कुछ भी कर सकता है, शांत होकर ध्यान करना है, अखंड ध्यान करना है। और तब से शुरू हुआ। आज ऐसी अवस्था आ चुकी है कि हम 60 से 70 मिनट 60 टू 70 मिनट तक ध्यान करते हैं, तब भी हमारी आँख खुलने का नाम नहीं लेती। इतना प्रभाव सिर्फ शब्द साधना से, मन से शरीर पे हुआ है। और ये मन पे हमने काबू किया तो नेचुरली हमारे शरीर पे भी काम चलने लगा। हमारे जैन शासन में कैसा है, जैन धर्म में, कि हमारे वहाँ उपवास का बहुत महत्व है। मतलब पूरे 24 घंटे तक कुछ खाना भी नहीं और पानी पीना, वो भी गर्म किया हुआ पानी पीना। कठिन है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं तो बहुत कठिन बात है। मैं नहीं कर सकता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि पूरे दिन खाना, मतलब कैसे रह सकते, दिमाग भी चलाना, एक्टिविटीज़ भी करना, तो बहुत कठिन था। बट जब मैंने साधना की तब मन पे इतना काबू आया कि अब मैं कितने सारे उपवास एक साथ कर सकता हूँ। मैंने शरीर पे कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ माइंड को कमांड दिया कि तू सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हिंदी में कहा है, मनुष्य तू बड़ा महान है, आई कैन डू इट। हमने कर लिया तो आज शरीर पे कुछ काम करते नहीं हुए भी मन पे काबू रखा तो आज हम शरीर पे आगे तक पहुंच गए हैं। जो मन को जीत सकता है वह सारी सृष्टि को जीत सकता है। जिसने खुद को जीता वो उसने पूरी सृष्टि को जीता। ऐसा हम कुछ शब्द साधना के माध्यम कह सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने कि खुद को जीता तो सृष्टि को जीता। और आज ये वीडियो योग प्रचार कम्युनिटी में जा रहा है, तो योग प्रचार कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मेडिटेशन, योगा, साधना के मार्ग पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो शब्द साधना जो आपने 8 महीने से की है, तो अगर उसका एक बेबी स्टेप, एक छोटा सा स्टेप अगर हमारे व्यूवर्स को लेना हो आज, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो कहाँ से शुरू करें? कुछ भी बोलो वो सोच समझ के बोलो, मर्यादित बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। और एक लाइन तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि बात इतनी सी मधुर रखो, बात इतनी सी मधुर रखो कि जब वापस लेनी पड़े तब खुद को कड़वी ना लगे। ये सार इतना ही है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो आपने ऐसे सुना, ही इज़ गोइंग टू अटेम्प्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड टुमारो, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन मेकिंग, then make sure to join live. Here I am here in Jamnagar, I'll be attending it here. But if you want to be a part of it, you can join YouTube live and the link is in the description. Namaskar.